Good morning, children. Today we have to learn provision of Indian Partnership Act 1932 pertaining to accounting treatment in the absence of partnership deed. Okay. The following provision of Partnership Act 1932 will be applicable if no partnership deed is prepared or no clarification is made in the partnership deed. Here again, partnership deed is more advisable for partners if partnership deed absence that time. Which type of provision of Indian Partnership Act 1932? Let's learn. First one, each partner contributes capital in the firm by mutual agreement. There is no restriction in the act in this regard. It is not mandatory to bring a capital for each partner. Then it means इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन किया ही नहीं है कोई भी पार्टनर चाहे उतनी कैपिटल लेके आ सकता है। उन लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बिजनेस स्टार्ट होता है। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हर पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी चाहिए। सेकेंड वन, interest on the capital of partner cannot be paid. Generally, here partners is the owner of the business, so interest on capital cannot be paid. मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी कोई प्रोविज़न नहीं है अगर वो पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई सर्कुलर उन लोगों ने मेंटेन किया हो तो ही देना है, वरना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिड नॉट पेड. नाउ थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड remain in equal proportion. Okay, if partners did not maintain partnership deed that time, distribution of profit and loss would remain in equal proportion. It means every partners has profit and loss in equal proportion. Now fourth one, interest on drawing of the partners cannot be charged. अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की कोई भी प्रोविज़न नहीं डाली है तो आपको ड्राइंग के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट लेना पे नहीं करना है. ओके. नाउ फिफ्थ वन, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स. तो पार्टनरशिप डीड में अगर आपने मेंटेन नहीं किया है कि सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन देना है कि नहीं, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप नहीं दे सकते. ओके. नाउ सिक्स्थ वन, 6% per annum interest is payable for the loan given by any partner to the firm. See here, partner is the owner, but if partner pay loan to the firm, that time it is compulsory to give 6% per annum interest on the loan. Okay. Now seventh one, in case of any reasonable expense incurred by the partner for the firm, the partner has the right to reimburse it. Okay. अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म के लिए कोई एक्सपेंस रीजनेबल एक्सपेंस किया है तो वो फर्म से वो एक्सपेंस की अमाउंट ले सकता है. ओके. तो ये सारे जो पॉइंट्स है आप देख सकते हो कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर ये सब पॉइंट्स आपने मेंशन नहीं किए हैं, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। लास्ट ईयर जब हमने फाइनल अकाउंट बनाया था तब हमने 3 अकाउंट मतलब 2 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, और 2 अकाउंट्स हमको ये साल भी बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर ये साल भी है, सेकेंड चैप्टर हमारा फाइनल अकाउंट्स का है। तो उससे पहले उसके अंदर जो हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, तो हम उसके लिए हमें क्या करना है वो पहले सीख ले आज। ओके, फर्स्ट वी कैन स्टडी रीड दैट थियरी एंड देन understood also. Okay, capital account of each partner is prepared in the books of partnership firm to record the individual transaction done by the partner with the partnership firm. An initial capital introduced by the partner and addition in capital in any means are recorded at the credit side of the capital account. Underline this sentence. Underline this sentence. Point number 6. Capital account of partners, page number 3. Last paragraph. You have to underline this sentence. इनिशियल कैपिटल मतलब आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो दैट टाइम पार्टनर्स जो भी कैपिटल लेके आता है वो कैपिटल अकाउंट्स, आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने। अगर आपके पार्टनरशिप में आप 4 पार्टनर्स हो बराबर, तो आपको चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अलग अलग नहीं बनाने हैं, एक हेडिंग देना है कैपिटल अकाउंट्स, और जितने भी पार्टनर्स हैं उसके लिए डेट, पर्टिकुलर्स एंड देन पार्टनर्स नेम। ओके, लाइक दिस आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और जो भी कैपिटल पार्टनर्स स्टार्टिंग में लेके आता है, इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, विच साइड? क्रेडिट साइड you have to record it, and in additional capital if they bring that also you have to record on the credit side of partners capital account. Okay, and transaction which reduce the capital are recorded at the debit side of the capital account. reduce कैसे होती है? पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस कैसे होती है? यू नो दैट पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है ड्राइंग से। ओके, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर वो लेके आता है कैपिटल तो क्रेडिट साइड, अगर वो कैपिटल में से कुछ अमाउंट वापस लेके जाता है मतलब आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, घटती है, तो आपको लिखना है डेबिट साइड। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 4. There are 2 methods to maintain capital account in the books of partnership firm: fluctuating capital account method and second fixed capital account method. Okay, first one, fluctuating capital account method. Properly read that paragraph first. A method in which the opening balance of the capital account and the closing balance of the capital account of any partner is reported fluctuated, it means flexible, is known as fluctuating or temporary capital account method. Underline this sentence. Again I am telling you, underline this sentence. Okay, under this method to record the transaction related to the partners, only one capital account is prepared in the books of firm. Opening capital, additional capital introduced during the year, interest on capital, salary, bonus, commission, remuneration, interest on loan given by the partner, share of partners in divisible profit
at the credit side of the capital account. Again underline all three sentence. आपको जो याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने क्या करना है. ओके, सॉरी चिल्ड्रन. अगेन स्टार्ट with second paragraph. Opening capital, additional capital introduced during the year, interest on capital, salary, bonus, commission, remuneration, interest on loan given by the partner, share of partner in divisible profit are credit at the credit side of the capital account. You understood this all three sentence? Underline. याद रखना है आप सबको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पार्टनर्स की कैपिटल. देन अगर पार्टनर्स अगर कोई काम करता है, पार्टनर्स एक्टिव है आपके बिजनेस फर्म में, तो उसको सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन या फिर और भी कुछ भी प्रॉफिट सॉरी अगेन जो भी मिलता है इनकम, जो भी इनकम पार्टनर्स को मिल रही है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड रिस्पेक्टेबल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करनी है. ओके, नाउ आगे पढ़े हम लोग. ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ पार्टनर इन डिविजिबल लॉस आर डेबिटेड एट द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर of the partner's capital account. You understood properly? सिर्फ drawing और interest on drawing. Okay, again I am telling capital, interest on capital, salary, bonus, remuneration and profit में जो भी शेयर है पार्टनर्स का वो सब क्रेडिट होगा. सेम वे अगर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर लॉस है, अगर पार्टनर्स को कोई साल किसी साल पार्टनर्स को बिजनेस में लॉस हो रहा है, दैट टाइम उसका जो भी शेयर है लॉसिंग में वो आपको डेबिट साइड लिखना है. ओके, अगेन रिमाइंड दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, देन सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, commission, divisible profit, share in divisible profit credited to the partner's capital account, and drawing, interest on drawing and share in divisible loss recorded at the debit side of partner's capital account. Okay, now next. To record these transactions, partners' capital account are debited or credited keeping in mind the nature of transaction. Consequently, during the year, there is either increase or decrease in the opening balance of the capital account. So, the balance of capital account of any partner keep on changing every year. Thus, this method is known as fluctuating or temporary capital account. कैपिटल अकाउंट टू टाइप्स के हैं. अगर आपके सम के अंदर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई करनी है या फिर फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करनी है, दैट टाइम आपको बहुत अच्छे से याद रखो. अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, फ्लक्चुएटिंग मीन्स एवरी ईयर पार्टनर्स की कैपिटल एक्सचेंज होती रहती है. एवरी ईयर अगर ये साल ख़त्म हुआ, आपके पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो नेक्स्ट ईयर चेंज होगी. बट फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा पता है, वहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी. अगर पार्टनर्स की कैपिटल 50,000 है तो एवरी ईयर आपको पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करनी है, तो आपको फिक्स 50,000 कैपिटल ही एवरी ईयर कंटिन्यू करनी है. ओके, बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल हर साल चेंज होती रहेगी आपके प्रॉफिट के सामने, ड्राइंग के सामने, लॉस के सामने. ओके, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि आपको करना क्या है. फिर से एक बार पढ़ते हैं. टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड keeping in mind
the nature of transaction. Consequently, during the year, there is either increase or decrease in the opening balance of the capital account. So, the balance of capital account of any partner keep on changing every year, and that's why this method called fluctuating or temporary capital account. All transactions between the partners and the partnership firm are recorded in the partner's capital account. Under this method, balance of partner's capital is either credit or debit. If there is credit balance in capital account, it would appear in the liability side of the balance sheet, and the debit balance would appear at the asset side of the balance sheet. A specimen of partner's capital account under fluctuating account method is as under. Again read that last paragraph. वहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई है, उसको अंडरलाइन भी करना है आपको और अच्छे से पढ़कर आपको याद रखना है. फिर से एक बार देखिए. अंडर दिस मेथड बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज either credit or debit. Underline यहाँ से. If there is credit balance in capital account. क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड नहीं आएगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, हमने ये भी पढ़ा है, ये सीखा है ऑलरेडी लास्ट ईयर, बराबर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा है. अगर वो क्रेडिट साइड होगा तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, और वो डेबिट साइड होगा तो उसको बोलेंगे हम क्रेडिट बैलेंस. ओके. तो नाउ क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट इट वुड अपीयर इन द लायबिलिटी साइड. चलो, आपके अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस, तो उसको आपको लायबिलिटी साइड दिखाना है, और डेबिट साइड जो बैलेंस आया तो आपको दिखाना है असेट्स साइड. ओके, अंडरस्टूड. इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका जहाँ पर भी डिफरेंसेस आएगा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, सेम टू सेम वे आपको कॉपी करना है इन बैलेंस शीट. ओके, अंडरस्टूड. फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी. अभी आप इतनी बात याद रखिए. और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्पेसिमेन दी है. अगर इतनी सारी थियोरी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ये जो स्पेसिमेन दी है उसको अच्छे से देखिए एक बार. ओके. Good morning, children. Already understand everything. We all understand about fluctuating capital account method. In short, मैं आपको कुछ शॉर्ट में कहूँ तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई करनी है आपको, तो आपको सिर्फ एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है जिसके अंदर पार्टनर्स की कैपिटल भी होगी, उसके ड्राइंग, सैलरी, बोनस या फिर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो सारा सब कुछ एक ही अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है. ओके. इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. ओके. नाउ सेकेंड मेथड, फिक्स्ड capital account method. A method of partners capital under which no change is reported in opening balance and closing balance in the partners capital account is known as fixed capital account method. Already I explained that कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल्स होगी और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल्स का वो चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा. इसीलिए ये मेथड को हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. अंडर दिस मेथड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर्स विद द पार्टनरशिप फर्म, टू अकाउंट्स आर मेंटेन इन द बुक्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट्स में डालनी है. उसमें कैपिटल, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस. ओके, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, everything recorded in the partners capitals account
ओनली, ओके। बट फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको 2 अकाउंट्स, अगर आपके सम के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको फिक्स मेथड अप्लाई करनी है, फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करके सम्स आपको करना है, तो आपको कंपलसरी 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इसमें एक आएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, तो सिर्फ वहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल होगी और क्लोजिंग, ये सिवाय वो कैपिटल अकाउंट में, फिक्स मेथड वाले कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? सी हियर स्पेसिमेन कॉपी गिवन, टू बैलेंस, टू कैश बैंक एनी अदर असेट्स, ओके, एंड बाय बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, एंड लास्ट में बाय कैश बैंक एनी अदर असेट्स। एडिशनल कैपिटल होगा तो वो क्रेडिट होगा, और लास्ट में आप देखो कि टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इट मीन्स क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स मेथड से अगर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए है तो वहाँ पर सिर्फ आपको पार्टनर्स की कैपिटल ही लिखनी है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, और जो भी टोटल होगा उसको लास्ट में कैरी फॉरवर्ड कर देना है बस। वो कैरी फॉरवर्ड किस में होगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। हम देखते हैं आगे। सेकेंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, द अकाउंट प्रीपेड to record the transaction of the partner with the partnership firm other than permanent capital is known as current account। तो यहाँ पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है कि कैपिटल के सिवाय बाकी पार्टनर्स की जो भी इनकम है, जो भी, वो सारी रिकॉर्ड होगी पार्टनर्स की करंट अकाउंट में, ओके। फिर से पढ़े एक बार। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, द अकाउंट प्रीपेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर्स विद द पार्टनरशिप फर्म अदर देन परमानेंट कैपिटल, परमानेंट कैपिटल के सिवाय बाकी सारी एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो जिनसे आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, वो सारी सब रिकॉर्ड होगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। एट द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on credit balance on current account, salary, bonus, commission, remuneration, share in divisible profit are recorded at the debit side of current account. Opening debit balance of current account, drawing interest on debit balance of current account, and share in divisible loss are recorded. The closing balance of current account can be either debit or credit balance. If closing balance of current account is credit balance, it is known as the capital and the liability side of the balance sheet, and the debit balance is shown at the asset side. The specimen given here, page number 6. Okay, you see properly. First again I am telling you, read properly all that theory. अगर आप थियोरी को, मैंने जैसे आपको 11th में भी बोलती थी कि थियोरी को आप अच्छे से पढ़ो, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, थियोरी को आप बार बार अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आराम से आप खुद भी समझ सकते हो, ओके। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल रिकॉर्ड होगी और करंट अकाउंट में कैपिटल के सिवाय बाकी जो भी एंट्रीज आएगी, मिस सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरीथिंग हियर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। और जैसे हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड में जैसे बोला था कि डेबिट बैलेंस होगा तो असेट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट, ओके।